Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. So in the last 3 months to NICET, the fire, the grill must be burning at such a heights right now. And basically in these last 3 months, I've seen two kind of people and me belonging to the second category myself. The first group of people are the one जो एकदम ही पागल हो जाते हैं, that junoon inside the student, it heightens up. And many a times you hear कि पूरे साल उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, but in last 6 months or 3 months has enormously done well, like was never expected to be of that side. And I am that kind of student who was in the second group कि last 3 महीने में you get exhausted, you are burnt up, you feel like कि अब पढ़ने से क्या हो जाएगा, जो last हमने इतने टाइम में पढ़ा है that is enough for us. And now in the last 3 months fueling it up so hard, making ourselves exhausted into the process, ये हमारे लिए नुकसान ही करेगा. Let's keep it a chill kind of thing and let's move on. And this was one of the mistakes I made, but I realized it very soon. I do not want you all to make this mistake in the last 3 months of the preparation. So before I start the video, I welcome you all once again to my channel. And if you really like my content, please do subscribe to my channel. And without wasting much of the time, because I know तुम लोगों की पढ़ाई अभी चल रही है, and I do not want to waste even a single second of yours. And I wanted to tell you some of the things which are very important in the last 3 months. And before that as well, I want you to know this कि प्लीज़ अब ढेर सारे मल्टीपल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है अबाउट व्हाट टू डू इन लास्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट 6 मंथ्स एंड एवरीथिंग. जस्ट फॉलो अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डू द आइडियाज़. आई हैड मेनी डीएम्स इन इंस्टाग्राम कि ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन हाउ टू प्रोसीड एंड स्टफ. सो आई वॉन्ट यू कि किसी एक को फॉलो करो वरना किसी को मत फॉलो करो. बी योर ओन मास्टर. Follow what you like to be, follow what fits into you. That is the most important and that is the most suitable thing for you. So first of all, as I've always said, NICET without PYQs is like hitting a target without an arrow. I hope you get it very clear that PYQs must be on your tips. याद रखना, नींद में भी अगर आके कोई पूछ ले कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, व्हाट इज़ द टॉपिक गोइंग टू बी ऑल अबाउट, एवरीथिंग अराउंड द टॉपिक मस्ट बी ऑन योर टिप्स. विदाउट PYQs एनीसेट इज़ नॉट डूएबल एट ऑल. तुम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो और PYQs नहीं करोगे, it is a waste of time. It is really a waste of time. The first handbook rule is PYQs are must. You cannot give up on them at this very crucial time of the last 3 months. The second most important thing is the 9 subject rule. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है about the 9 subject rule, which includes the first and the second year subjects. थर्ड ईयर में से we have the PSM and the FM and final year subjects में से surgery and OG. You cannot mess with these part of the subjects. And basically I want you all right now, because I'll take कि February अब खत्म ही, I'll take March, April and May. May का भी you have 15 days in your hands. तो अभी जो फर्स्ट सेट तुम्हारा मार्च में आएगा, इन दीज टाइम ना मैं 9 सब्जेक्ट्स के अलावा के जो 11 सब्जेक्ट्स या फिर 10 सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे पास बच रहे हैं, आई वॉन्ट यू ऑल कि तुम इस 10 सब्जेक्ट पे फोकस करो और उसमें भी मेडिसिन को गिव द लीस्ट टाइम. एज आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज इटसेल्फ कि मेडिसिन डजंट नीड दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड दैट अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ मार्क्स इट इज गोइंग टू गिव यू इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो तुम्हें वो जो 10 सब्जेक्ट्स है वो अभी कवर करना चाहिए, विच इज़ अकॉर्डिंग टू माई strategy and the criteria as I followed. And जो next 1 month and 15 days आने वाले, which is the last 1.5 months का duration, उस टाइम में आई वॉन्ट कि एक महीने तुम पूरा ये जो 9 सब्जेक्ट रूल हो उसी में एनग्रॉस्ड रहो. Read each and every subject very carefully, the first second subject forming the base of everything in INI. And last 15 days revision भी must be focused on these 9 subjects itself. And why I am not telling you कि सारे के सारे subjects revise करो, because हमारे पास चीज़ें बहुत वास्ट है. वी हैव एन ओशियन जिसमें से हमें पर्ल्स इकट्ठा करने हैं. तो वाई नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू लेंड यू अप विथ 150 क्वेश्चंस. एंड दीज 150 क्वेश्चंस में से अगर तुम्हारी 120 130 करेक्ट हो जाता है एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स में अगर 20 30 भी करेक्ट हो जाता है, यू आर गोइंग टू गेट 150 to 160 करेक्ट्स. एंड यू नो व्हाट, दिस इज द रेंज फॉर टॉप 100. मेनी टाइम्स पीपल टेंड टू आस्क मी कि मैम अंडर 100 रैंक लाने के लिए कितने करेक्ट्स चाहिए होते हैं. इट इज़ नॉट लाइक नीट पीजी कि तुम्हें 170 180 करेक्ट्स लाने होंगे टू गेट इन टू अंडर 100. इट्स अ बेयर मिनिमम दैट इज़ 150 करेक्ट्स.
150 से एक भी क्वेश्चन, एक एक पॉइंट के मार्क्स रेंजेस यू अ रैंक अंडर 100, और उसमें भी बड़ा बड़ा रेंज आता है इवन इफ तुमने एक क्वेश्चन या 0.3 पॉइंट इंक्रीमेंट लिया है तो। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल कि 9 सब्जेक्ट्स को हमें भूलना नहीं है, यही हमें स्टिक रहना है इन द लास्ट 1.5 months। बट अभी का जो एक महीना है इज़ अ बफर फॉर यू फॉर द रेस्ट 10 सब्जेक्ट्स जिनको तुम्हें कवर करना है। रीड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो भी तुम्हारे रिविजन नोट्स में है उनको देखो, जो तुमने, या फिर अगर तुमने मेन नोट्स में ही लाइन्स करके रखा है, रीड दोज थिंग्स ओनली। The third most important rule that I want to talk about right now is do not go to new things. And I mean it very strategically in the perspective कि जब मेरी पहली INI-CET थी and I was told कि बायोकेमिस्ट्री में मॉलिकुलर जेनेटिक्स बहुत पूछा जाता है, फार्मा में they go in very in depth of the drugs, and I have done this mistakes कि मैं बहुत ज़्यादा घुस गई थी उसके अंदर। आई यूज़ टू डू चैट जीपीटी, गूगल, क्योंकि ईजिली एक्सेसिबल चीज़ें नहीं होती हैं जो आईएनए में बहुत ही भद्दी तरीके से पूछी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ पर्सपेक्टिव्स, एंड दैट वेस्टेड अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक चीज़ याद रखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो किसी को नहीं आते हैं। वो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि तुम्हें मॉलिकुलर जेनेटिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से पूछी जाए, फार्मा के कुछ ड्रग्स हो जिनके इन डेप्थ मेटाबॉलिज्म में घुस जाए, जो कि हुआ भी है, देयर हैज़ बिन पास्ट ट्रेंड्स। बट वी कांट कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग अराउंड, मतलब हर चीज़ पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। इट्स ओके टू लीव सर्टन थिंग्स इवन इफ वी नो कि ये आने वाला है। जितना हमारे पास हमारे रिविजन वीडियोस, कंटेंट सोर्स एंड पीवाईक्यूज में है, एंड पीवाईक्यूज में उसके अराउंड जितना इन डेप्थ नॉलेज दिया है उतना ही पढ़ो। वी डोंट वांट टू हैव न्यू थिंग्स, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें पूछी गई अगर उसी को करेक्ट करोगे ना तो you'll have a correct number of like 150 to 160 if you have done it very well, right? You don't have to, you know, rotten up your mind with the questions जो rest 50 या rest 40-50 questions. It's completely okay if you don't know them, right? So this is the third most important rule. कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है अभी, एंड इसमें नई चीज़ में BTR इज़ वन ऑफ द थिंग कि अभी लास्ट 3 महीने में आई डो नॉट रिकमेंड कि कोई भी BTR यूज़ करेगा। एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो ऑलरेडी दूसरे सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। तुम डैम्स वाले हो, तुम मेरो वाले हो, तुम रिप्लाडो वाले हो, तुम DBMC वाले हो, ये बच्चे BTR नहीं यूज़ करो, वही बेटर है। तुमने ऑलरेडी एक रिविजन सोर्स यूज़ किया है, तुमने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, विद द काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज फॉलोइंग अप, द टीचर्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। यू डो नॉट नीड टू स्विच टू BTR एट दिस वेरी लास्ट मोमेंट। मुझे पता है लोग तुमको कहेंगे कि BTR से ही पूरा पेपर बनता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स हैव बीन गुड रैंकर्स, हैव रेड BTR एंड दे डो नॉट सर्टिफाई दिस थिंग कि हाँ BTR से ही पूरा पेपर बनता है। BTR इज जस्ट अ सोर्स जो आपको कंसाइज्ड लास्ट 10 days का रिविजन पॉइंट देता है, दैट्स इट। अगर तुम वो खुद बना सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट BTR फॉर यू। BTR इज़ मेरा क्या वीक पॉइंट है, मुझे क्या चीज़ याद नहीं रह रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ, राइट? सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, दैट तुम्हें कोई नया सोर्स लास्ट 3 महीने में नहीं लेना है, बीट BTR, बीट एनीथिंग, राइट? चौथी चीज़ दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, बट तुम्हें अपनी कॉन्सेंट्रेशन टाइम लिमिट को बढ़ाना है। नाउ इट्स द टाइम कि तुम्हें खुद को 7 से 8 घंटे या 9 घंटे दिन के पुश करने हैं, बट नॉट पुशिंग आउट ऑफ द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स पर से। तुम्हारी फिजियोलॉजिकल लिमिट में तुम 7 से 8 घंटे ही कॉन्सेंट्रेट रह के पढ़ सकते हो, उसके बाद तुमने खाना छोड़ दिया, तुम सो नहीं रहे हो, तुम रात के 2 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ जा रहे हो एनजाइटी में। These things are going to deteriorate your concentration, deteriorate your focus, तुम्हारी मार्क्स ग्रेजुअल रिडक्शन ट्रेंड्स में तुमको देखेंगे। ये सब नहीं करना है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पर्टिकुलर पीस विच वी डिमांड इन द लास्ट 3 months, बट हमें खुद को काम डाउन करना है। डू मेडिटेशन, डू योगा, आधे घंटे बाहर खेलने जाओ, जिम जाओ। मेरा था कि आई एम liking dancing and singing, so I used to do it in a half an hour or 1 hour time, या मम्मी के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। प्लीज़, रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 3 months। जितना स्ट्रेस लोगे उतनी एफिकेसी कम हो जाएगी। आई नो यू ऑल आर बायोलॉजी MBBS स्टूडेंट्स, हमको पता है स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट वी आर गोइंग टू पुट ऑन,
टू थिंग्स, राइट? सो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। प्लीज़ एंगेज योर सेल्फ इन टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आपकी आधे से 1 घंटे दिन के विथ रेगुलर ब्रेक्स, जो भी तुम्हारा रेगुलर ब्रेक टाइम था। जैसे मेरा 3-3 घंटे का ब्रेक टाइम होता था कि एवरी 3 आवर्स में मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी, एंड दैट वॉज द टाइम एंड आई यूज टू डू इट माई स्टफ, माई काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी तुम्हें पसंद है। यू हैव टू डू इट, बट प्लीज़ डू नॉट पुश योर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि एवरी डे आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस 100 MCQs। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इट्स 100 MCQs अ डे। लास्ट के जो 3 महीने में होता है ना, हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए कि इफ द क्वेश्चन कम द आंसर शुड क्लिक लाइक दिस, यू नो वॉट। क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि लास्ट जो कुछ डेज आते हैं, लाइक लास्ट 2 मंथ्स या 1 मंथ में, लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि तुम रिविजन ऑफ द सोर्स तो यूज़ कर रहे हो, कंटेंट हम सब पढ़ के ही जाएंगे, बट उसका एप्लीकेशन हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए इन द लास्ट 3 मंथ्स। डू यू गेट इट? मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट हमें रेगुलरली पढ़ना ही है, बट उसको अप्लाई करना है उन क्वेश्चंस में जहाँ हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आता पता ही नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, इट डज़ नॉट कम विद जस्ट रीडिंग द कॉन्टेंट्स। अगर ऐसा ही होता तो हम सबको एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा कंटेंट पता होता है, बट नॉट एवरी वन इज़ एन एंकर। क्यों? क्योंकि हमें उसका एप्लीकेशन ही नहीं आया। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली डेवलप होती है जहाँ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी प्रिसाइजली, इवन नोइंग जस्ट 25% ऑफ द नॉलेज। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आई वुड से कि तुम मिक्स कर सकते हो, लाइक 50 क्वेश्चंस PYQs के करो, 50 क्वेश्चंस न्यू करना, क्योंकि आना में रिपीट के ट्रेंड्स है, बट नए क्वेश्चंस भी आएंगे और पुरानी चीज़ों में से ही नए क्वेश्चंस बनेंगे। उनको आइडेंटिफाई करना इज़ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चन, सो दैट तुम्हें पता चले कि चलो इस चीज़ को ऐसे भी पूछा जा सकता है। इट इज़ जस्ट न्यू क्वेश्चन, इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द टॉपिक। जो आउट ऑफ द टॉपिक आएगा वो किसी को नहीं आने वाला है, बट अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है, तो हाँ, ये तुम जब नए नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे ही तुम्हारा ये प्रैक्टिस बनेगा, उससे ही तुम्हारा ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बनेगा कि ओके, आई हैव टू डू दिस वे, इफ दिस कम्स आई कैन एलिमिनेट सर्टन ऑफ द थिंग्स, हाउ टू एलिमिनेट अदर पार्ट ऑफ द ऑप्शंस, because many a times it's the elimination of options that give you that one answer ki yeah, this is the correct answer. So this rule has to be followed very rigorously. You have to do 100 MCQs every day. I hope I have made this point very clear. Regarding the brief time schedule, आई वुड से कि मैं हर बार ये चीज़ अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि टाइम स्केड्यूल, जो टाइम टेबल है तुम्हारा, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना तुमने दिमाग यूज़ किया है पढ़ने में, नाउ यूज़ इट फॉर योर ओन टाइम टेबल, क्योर इट आउट फॉर योर सेल्फ कि वॉट इज़ आई एम लैकिंग, वॉट आर द थिंग्स आई हैव टू डू, वॉट आर द थिंग्स आई एम वेरी वीक एट एंड आई शुड बी डूइंग इट राइट नाउ। द लास्ट, बहुत सारे लोग तुम्हारे अगल बगल, तुम्हारे दोस्त, मे बी वेरी नोन पीपल कि यार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये यहाँ पूछा गया था, ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये इस साल में पूछा गया था। तो एक unavoidable kind of fear factor create होता है in the last 3 months, and I've seen it, like people, eventually I was a target of that as well, कि बहुत ज़्यादा fear factor आ जाता है and you think like oh यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, I might miss out on something, and you just really forget the kind of schedule which you have created for yourself, the kind of timetable that you had to stick for yourself. And इस fear में ना कि यार कहीं मुझसे ये छूट जाएगा तो क्या पता ये क्वेश्चन कल आ जाए। देखो, हम जितना पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ 60 to 70% ऑफ द सिलेबस है जो हमें वहाँ पे याद होगा। रेस्ट 30-40% जो है वो शायद किसी एक इंसान को याद होगा तो किसी दूसरे इंसान को याद नहीं होगा। हमें उस चीज़ की चिंता ही नहीं करनी है। भले पीपल वुड बी सेइंग कि ये कर लो, वो कर लो, ये सोर्स इंपॉर्टेंट है, ये क्या ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 100% स्ट्राइक रेट, फलाना टिमकाना बोलते रहेंगे। इस पे ध्यान मत देना। डू इट अकॉर्डिंग टू वॉट योर कॉन्शियस सेज राइट नाउ. You have the PYQs, you have the notes, you are studying in the best platform. You do not need anyone to suffice that. And your GT scores are your markers, are your performance markers. And yes, the most important thing that I wanted to address in this video itself कि GTs खाली उस प्लेटफॉर्म से नहीं दोगे जिस प्लेटफॉर्म को तुमने यूज़ करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैरो यूज़र थी तो मैं मैरो की GTs तो देती थी, बट इन द लास्ट 3 months के स्पैन में आई हैड शिफ्टेड रहा कि अब मैं मैरो की GTs ही देना बंद कर चुकी थी।
I used to give it cerebellum के GTs, I bought that up. I used to give prep ladder के GTs, I used to give DAMS की GTs, DAMS की जो CBTs आती थी, I've appeared for it for थोड़ा सा एक रियल एग्जाम एक्सपीरियंस हमको पता चला, बिकॉज रियल एग्जाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द GTs दैट यू गिव एट योर होम, एंड दिस नीड्स एन एक्सपीरियंस, राइट? क्योंकि एक एनजाइटी अलग लेवल की शूट हो जाती है एंड यू रियली डोंट नो, बिकॉज अगर उस 3 घंटे में, दैट इज़ लाइक कि पूरे साल बहुत अच्छे से किया, बट अगर उस 3 घंटे में तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी एनजाइटी के मारे में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हिला के चला गया, अगर तुम्हारे पहले 5 क्वेश्चंस ही अलग टाइप के हो गए और तुम्हें नहीं आया, दैट जस्ट टोटली शूट्स द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेजुअली तुम्हारे रिजल्ट्स टेपर होने लगेंगे। एंड उस 3 महीने, उस जो 3 घंटे हैं और उसमें जो सेट्स ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, जो हर सेट में क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बौखला चुका होगा एंड यू वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो आई वॉन्ट कि तुम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से GTs दोगे अब, एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच यू नीड टू गिव द GTs इज, आई वुड से कि हर रोज़ तुम 180 क्वेश्चन से सॉल्व करो, ये 100 क्वेश्चन भी तुम दूसरे प्लेटफॉर्म से सॉल्व करो। ये भी मेरी एक एडवाइस होगी कि ठीक है, तुम प्रिपलैडर ले सकते हो या फिर जो भी कम एक्सपेंस में है कुछ प्लेटफॉर्म्स, या फिर तुम अपने फ्रेंड्स से मांग सकते हो। इट इज़ ऑल्सो एन ईजी सोर्स कि तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, GTs डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करनी है। द फ्रीक्वेंसी एट विच यू शुड गिव इज़, मैंने वीकली फॉलो किया था एंड ग्रेजुअली इन द लास्ट 15 days फिर GTs मैंने नहीं दिए थे, बट अभी तो आई यूज टू गिव इट GTs वेरी डिलीजेंटली। PYQs must है, the 9 subject rule, no social anxiety, do not push your physiological limits, it's your concentration limit that has to be pushed। अभी ज़रूरत है 7 से 8 घंटे पढ़ने की, 9 घंटे पढ़ने की। अभी टाइम है दैट द फायर, दी आग तुम्हारे अंदर है ना, इसे टॉप ऑफ द स्काई पे होना चाहिए। अनटिल अनलेस तुम चाहते हो कि तुम एम्सोनियन बनो, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ो, नो बडी कैन पुश यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, इट्स द ड्रीम। तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि दीदी हाउ हाउ वर यू एबल टू डू इट, इट वॉज द ड्रीम, इट वॉज द ड्रीम टू बी देयर एंड दैट पुशेस द लिमिट्स मच मोर। टेक केयर, गुड बाय। एंड अगर तुम्हें रियली कोई भी डाउट है इन रिगार्डिंग विद INI CET, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल बी वेरी ग्लैड टू address all the doubts. So feel free to ask and all the very best and take care, and कुछ भी लगे तो you can comment me down and I'll surely answer soon. Thank you.